पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अरे जय 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 भीम जय भीम जय 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 भीम। மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற கொடுமைகளுக்கு மராட்டியத்தில் மிகவும் ஒரு கடினமான தன்னுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்வதில் மிக கைத்திருந்த ஒரு நல்ல மனிதர், சிறப்பான மனிதர். அவரை உயர்த்தப்படுகிறார். मानव नायकम धन्यवाद। भारत के घटना के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनके विचारों को तीव्र अभिवादन। और इस मंच पर बैठे हुए सम्माननीय सारे मंचगण और मेरे सामने बैठे हुए सब मेरे दक्षिणात्य भाई, आज हम यहाँ पर एक विशेष सभा संबोधित कर रहे हैं। तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में एक 17 साल के 12वीं स्टैंडर्ड के बच्चे के ऊपर जिस तरह से अमानुष जातिवाद करके उसको मारा गया, उसकी बहन को मारा गया 9 अगस्त को, और वो सदमे से उनके दादाजी आज उनका देहांत हुआ। उसके सिलसिले में दक्षिण भारत से लेकर महाराष्ट्र तक वो आग फैल चुकी है और उसका नजारा आप लोग यहाँ पर मौजूद है। எந்த ஒரு கருத்துக்கும் நான் மறு கருத்தோ பதிலோ சொல்வதற்கு நான் இல்லை. அதை இந்த நிகழ்ச்சியை தலைமையேற்று நடத்துகிற மதிப்புக்குரிய மாறன் அவர்கள் அதற்கு தகுந்த கருத்துக்களை சொல்லுகிறார். ஒரு விஷயத்தை நீங்க தெளிவா ஒரே ஒரு விஷயம், நான் ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் பதிவு செஞ்சு என்னுடைய கண்டன உரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். நான் ஒன்றும் பம்பாய்க்கு டாடா பிர்லாட்ட ஒப்பந்தம் போடுறதுக்கு இங்க வரல, ஒப்பந்தம் போட்டு தொழில் செய்யறதுக்கு வரல. இதே 9 तारीख को जो नागुर नेरी एक गांव में चंदन तुराई और चंद्रशेखर सेल्वी 17 और 12 साल में 12वीं में थी और 8वीं में। ये जो गांव में ये त्रिवेणी गांव है, ये बिनौली गांव तेरकाशी और टुकड़ी विरुद्ध नगर ये जिला है। हम चाहते हैं कि ये सब जो घटना करती है, छोटे छोटे बच्चों को मारना, ये आज के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिखा है। ये संविधान में आज पढ़ना लिखना चाहिए, सब काम करना चाहिए। और ये सब छोटे छोटे बातें गांव में बच्चे लोगों को मारना, आप जो करते हैं उसका परिणाम, उसका जो मैटर है, ये बंबई में आप धारावी में हर समाज के लोग यहाँ रहते, पूरे तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के लोग रहते, ये पूरा समाज धारावी में बसा है। और ये धारावी सब समाज की है। इस धारावी में समाज के अपने गाँव में जो होते हैं तो बंबई में होता है। இதெல்லாம் ஒரு பாருங்க, சுத்தமாக அலைய சொல்றாரு திருப்பி விட்டுருலாம். எந்த அளவுக்கு ஒரு பாதிக்கப்படுற மனசால நம்ம மக்கள் அது யாரோ எவ்வளோ அதிகாரிகளுக்கு பண்றாங்கன்னு கேட்கப்படுறது ஒரு கோவம் வரதான் நீங்க எல்லாருக்கும், அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு மட்டும் எல்லாரும் கோவப்படுறாங்க, ஆதங்கப்படுறாங்க. ஆனால் வேற வழியும் தெரியல, என்ன பண்றது? நீங்க எத்தனையோ இளைஞர்கள் பட்டதாரிகள் வேலை இந்த மாதிரி இதுல பட்டு நீங்க ஒரு வேலை தெரியாது பண்ண முடியாம குடும்பத்தை வேலை எத்தனை பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. ஒரு கோபத்தில் எடுக்கிற சரி பாதுகாக்கப்படணும், மக்கள் பாதுகாக்கப்படணும். அதுக்கு ஒரே வழி திருப்பி அடிக்காமலாம் கிடையாது, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்மளும் அடிச்சுட்டு தானே இருக்கும், ஏதாவது ஒரு இடத்துல வாங்கிருந்தோம் அவ்வளோதான். அதுக்காக அது நம்ம அடியப்பட்டு இருக்கோம் இல்லை, எங்கே கொடுப்பாங்க வசமா, அதனால நம்மளாம் வந்து திரண்டு பண்ணுவோம். அப்படி ஒரு குழு அமைக்கணும்னு நீங்களாம் ஒன்று வந்தா கண்டிப்பா நான் அதுக்கு தயாரா இருக்கேன். எந்த தமிழ்நாட்டு திருநெல்வேலியில் எந்த இடத்துல நம்ம மக்கள் அங்கே பாதிக்கப்பட்டாலும் இங்கிருந்து ஒரு டீம் அமைச்சு இவன் செய்யறதை விட அதிக கொடூரமா அதை செய்யறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன். நீங்க வந்து வச்சிருந்தா நான் இருக்கேன். அடுத்தபடியாக கூடத்திலே வலிமை எனக்கும் தூக்கம் தொலைவிட்டு, ஆனால் என்ன செய்ய முடியும் என்ற கையாலாகாத ஒரு கையறு நிலையில் தான் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். எல்லோருக்கும் ஆற ஒருமுறை தமிழ்நாட்டில் சாதி வன்முறைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சுதந்திர நாள், விடுதலை நாள் நாடெல்லாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற போது நம் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட அவலத்தை நான் அந்த பிரச்சனை நடந்ததுக்கு நான் ஊர்ல பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கேன். அவங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க நீங்க கொடுக்காங்க. ஆனா அந்த ஃபேமிலி அவங்க அந்த பையனோட வாழ்வாதாரம் எல்லாமே இறந்த மாதிரி தான் இருக்கு. 2 வருஷம் ஆகும் அந்த பையன் அந்த இடத்துல ரிகவர் ஆகி வருது. மென்டலி தெரியும், பிசிக்கலாவும் தெரியும். அந்த ஃபேமிலி உழைக்கிறது அந்த ஒரு பையன் தான்.
சுருக்கமாக சொல்ல போனால் அநியாயம் நாட்டுக்காக உழைத்தார்கள், இன்றைய தலைவர் தன் வீட்டுக்காக உழைக்கிறார்கள். இதுதான் வித்தியாசம். அதனால தயவுசெய்து இன்னும் மக்கள் அரசாங்கம் தான் நம்ப போறது கிடையாது. அதனால மக்கள் தன் கையில தான் எடுக்க போறாங்க. கையில எடுத்து நமக்கு இடஒதுக்கீடு மூலியமா சலுகைகள் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. அப்போ எஸ்சின்னு யாருன்னா எஸ்சின்னு கேட்பாங்க. எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கை தூக்கும் போது அந்த டீச்சர்ஸோட ஒரு பார்வை இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த பார்வையை அனுபவிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த சாதி கொடுமை என்ன அப்படின்ட்டு. ஒரு விஷயம் எனக்கு மைண்டில் அப்லோட ஓடிட்டு என்னன்னா, இங்கே தமிழ்நாட்டில் நடந்த கண்டிச்சு நம்ம கூட்டம் பண்ணுறோம். இங்கே தாராவிலே நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. தாராவிக்குள்ள हमारे हाट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के धारावी क्रॉस रोड इलाके में। ये गणेश मंदिर है। यहाँ का ये परिसर में आज एक अर्जेंट यहाँ पे एक सभा लगाई गई थी। सभा के जो आयोजक है यहाँ पे मारी भाई, यहाँ से आज जो 15 अगस्त के दिन जो यहाँ पे एक साइलेंट जो यहाँ पे जो सभा लगाई थी, इसका मकसद क्या था ये जानते हैं। मारी भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज जो देश आज़ाद हुआ है, आज देश में 77वां जो स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि गमी का माहौल दिखाई दिया। एक साइलेंट आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट तरीके से जो यहाँ पे अपने लोगों को जमा करके जो आज जो बातें हो रही थी, तो ये आज करने का मकसद क्या था? आज यही करने का था कि मकसद है कि जैसा आपने बोले कि आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी हमारे लोग, हम या हमारे समाज के लोग आज भी वो जातीय एट्रोसिटी से बाहर नहीं आए। भी अगस्त 9 तारीख को हमारे गांव में, तमिलनाडु नांगनेरी करके एक गांव में, एक 12वीं पढ़ता हुआ एक लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता है। वो स्कूल में ऊंचे जात के जो सोकॉल्ड अपकास्ट लोग, ऊंचे जात के वो लोग भी पढ़ते हैं। वो आपस में दोनों में कुछ ये, वो आपस में ऐसा भी नहीं था, वो लोग रैगिंग करते थे। ये छोटे जात का हमारे समाज का लड़का छोटा जात का है, तो ये हमारा बैग उठा, हमारे लिए पान पराग ला, बीड़ी सिगरेट ला, हाथ पैर दबा, ऐसा उसको बहुत रैगिंग बहुत सताइल है। तो वो डर के मारे क्या 10 दिन स्कूल नहीं जा रहा। अब वो लड़का बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का, तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको घर पे फ़ोन किया कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। तो ये लोग बच्चे को पूछा था क्यों नहीं आ रहा, तो इसने फिर रो के बोलने लगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है स्कूल में, मेरे को दूसरा कोई स्कूल में भर्ती कराओ। तो वो माँ बाप जाके वो स्कूल के मैनेजमेंट में कंप्लेंट किए कि इधर ऐसा बच्चे लोग हमारे बच्चे को ऐसा सता रहे। तो मैनेजमेंट ने वो जो कंसर्न बच्चे लोग को बुला के जो पनिशमेंट है, कुछ पनिशमेंट भी कुछ नहीं किया, वार्निंग दिया है आइंदा ऐसा मत करो करके। तू छोटे जात कर रहे कि हमारे बड़ा जात का आदमी लोग बच्चे लोग के खिलाफ कंप्लेंट कैसा तू करेगा स्कूल में, ये बोल के रात के 10 बजे वो घर घुस के माँ उसका नाना और उसकी बहन 13 साल की छोटी बहन, इसके घर घुस के 3 जन कोयते से इतना 27 जगह बेरहमी से मारे। वो बच्ची 13 साल की बच्ची जब उसको बचाने गई तो उसको भी नहीं बचे, उसको भी मारे। ये उसकी जो ये सब देख रहा था उसका नाना, वो जगह पे अटैक में मर गया। तो इतना कुछ अभी 6 साल पीछे जाएंगे तो दलित बस्ती में जो पानी पीते, जो पानी का टैंक रहता है, उसमें जाके इंसान का जो गंदगी डाल के आगे ले, मतलब ये आए दिन बढ़ते जा रहा है। फिर हम लोग भी देख अभी चुप नहीं बैठ सकते हैं कि ये लोग अभी इतना साल होने के बाद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी कुछ ना कुछ तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो उसके चलते ये पहला एक कार्यक्रम था जो सबको हमारे समाज के लोगों से मिला जुला के ये करने का। हमारा एक युक्ति है कि हम इधर के गवर्नर से जाके मिलने का, हमारे जो तकलीफ गांव में जो हमारे जात वाले के साथ हो रहा है, ये गवर्नर को मिलने का, गवर्नर के थ्रू तमिलनाडु गवर्नमेंट को एक प्रेशर देने का कि ये दलित बस्तियों को बचाओ, दलित बच्चे लोग को बचाओ। हम बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं, बाबा साहब के बच्चे लोग हैं, हमारे हथियार सिर्फ पढ़ाई है। अब पढ़ने वाला बच्चों को ही मार देंगे तो फिर और क्या क्या जाएगा बाकी। तो ये सब चीज़ के ऊपर आज एक प्रोटेस्ट, एक निषेध आंदोलन किए। आंदोलन अभी गवर्नर के आगे जाएगा, तो डेट आएगा तो हम वापस बताएंगे आपको। फादर, जैसे कि हमारी भाई ने बताया है, देश जो 77वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, लोगों ने आगे की सोचा है, लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो पुराने जो ख्यालात है लोगों के उस ऐसे चल रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी हमारा स्वतंत्र दिन, इसके लिए हम सॉल्यूट है। सुबह से शाम तक 3 रंगा झंडा है, वो रात को कैसे अंधेरा है, ऐसे हमारा जनता भी अंधेरा में रहता है इतना साल से भी। इसके लिए ये दिन हम लोग एक वो 9 तारीख, इसके लिए हम आज इधर प्रोग्राम किया। हम बड़ा रैली निकालेंगे हमारा सुरक्षा के लिए।
गवर्नमेंट का हमारा निवेदन बताने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये आदि द्राविड़ महागासन संघ है, ये 120 साल के जूना है। मतलब हम बाबा साहब का घटना का मिल के आगे चलने वाला, हम दूसरा गलत काम का ये नहीं करता है। ये गलत काम करने वाला का गवर्नमेंट उसको ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उसको ऊपर सबक शिक्षा करना चाहिए। इसके लिए हम ये कार्यक्रम आयोजन किया मारी भाई, इसके लिए हम लोग सब लोग मिल के इसमें शामिल हुए। संजय भालेराव जी, जैसे कि आज जो देश में जो माहौल क्रिएट करने का जो दौर चल रहा है, लोग कहते हैं कि बाबा साहेब का संविधान पे हम चल रहे हैं, बाबा साहेब के संविधान के ऊपर ही हमें रहना है। आपको लग रहा है कहीं बाबा साहब का संविधान फॉलो किया जा रहा है सही तरीके से? मैं अन्ना भाऊ साठे की एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अभी तक जो मारी भाई ने बताया कि तिरननवल्ली गांव डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में रैगिंग के तहत एक बच्चे को किस तरह प्रताड़ना की गई, उसने कंप्लेंट नहीं की थी, लेकिन स्कूल प्रशासन को लगा ये पढ़ा लिखा बच्चा है और ये स्कूल में क्यों नहीं आता है। ये उसके परिवार को जब फ़ोन किया, बताया, तो इस तरह से रैगिंग वाली घटना सामने आई। और जब सवर्ण समाज के लोगों को ऐसा लगा कि मेरी कंप्लेंट ये फैमिली ने की है, तो रात को वो बच्चों को, 17 साल के बच्चे को, 13 साल की उसकी बहन को तलवार चॉपर से मारा गया, काटा गया। और उस धक्के को लेके उनके दादाजी ये एक्सपायर हो गए ले। तो उस घटना का हम लोग पुरजोर तरीके से पहला निषेध व्यक्त करते, निंदा करते हैं और समाज में सभी तबकों को समता में लाना चाहिए। आज 77 तक भारत के लोगों को एकता दिखानी चाहिए, जातिवाद बंद होना चाहिए। लेकिन अभी भी जातिवाद बड़े पैमाने पे है, रग रग में है, मानसिकता पे है, स्कूल में है, सरकारी कर्मचारियों पे है, खेतीबाड़ी में है, जातिवाद फैला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तिरननवल्ली डिस्ट्रिक्ट में ये अभी की घटना नहीं है, 14, 15, 16 घटना हो चुकी है, उसके आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में भी हो चुकी है। तो तिरननवल्ली डिस्ट्रिक्ट को एट्रोसिटी प्रॉन एरिया करके डिक्लेयर करना चाहिए और उस घटना में जो बच्चियों को मारा है उसमें पॉस्को जैसे गुना दाखिल करना चाहिए। लैंगिक अत्याचार हो गया बच्चों लोग का, उसके बाद में अभी उनके दादाजी का देहांत हो गया उपचारानंतर, तो उनके ऊपर भी मर्डर केस 304 की गैर इरादन हत्या का केस दाखिल होना चाहिए। और इन धाराओं के तहत उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलना चाहिए, हम ऐसी मांग करते हैं। और इसीलिए मारी भाई अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तालुका अध्यक्ष है, सुसाई साहब वहाँ के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चेन्नई के संपर्क प्रमुख है। और इस सभा को संबोधित करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बम्बई के अध्यक्ष सिद्धार्थ भाऊ कासारे खुद आए हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आदि द्रविड़ समाज के यहाँ से 12 से 15 लाख लोग बम्बई में है और सबसे ज़्यादा उसका हेडक्वार्टर है धारावी में गणेश मंदिर। ये इसकी परंपरा 111 साल की है। आप मेरे पीछे देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पूरे धारावी में पुतला नहीं है, खड़ा पुतला यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला बहुत बड़ा समाज है, समता पे चलने वाला है। मैं इस सभा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो घटना हुई उसका पुरजोर विरोध करता हूँ, धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। जैसे कि सारे लोगों ने तो बता दिए जो बातें थी, अब हमारे चैनल के माध्यम से मारी भाई आपके जो पार्टी से जुड़े हुए धारावी तालुका अध्यक्ष भी, आपने कहा है कि जो भी जैसे भी रहेगा हम रामदास अठौले जी को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा। तो आगे कैसे आपका सहयोग रहेगा? नहीं, आज का जो दिन है 15 अगस्त है, देश स्वतंत्र हो गया है। ये देश चल रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पे चल रहा है। और तिरनवल्ली गांव में जो घटना हुई है, 12 साल के बच्चे को जो मारा है, रैगिंग के बारे में किया है। तो आज यहाँ जो आदि द्राविड़ महाजन संघ, ये बम्बई में एक बड़ी 15 तो 20 से 25 लाखों में लोग महाराष्ट्र में रहते, बम्बई में रहते। तो इनके प्रमुख हमारे मारी भाई है और बाद में हमारे पार्टी के दूसरा नेताजी है फादर सुसई है। मारी तो यहाँ समाज का प्रमुख नेता है। उसके बाद में आरपीआई के धारावी तालुका अध्यक्ष समाज सेवक हमारे भालेराव साहब है और आनंद भाई प्रकाश जादव है जिले के अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको तबलीग मत दो, चिढ़ाओ मत। हम बाबा साहब के संविधान के माध्यम से चलने वाले लोग हैं। आज छोटे बच्चों को तुम रैगिंग करके, जब बच्चा स्कूल में नहीं जाता है तो उससे टीचर जाके पूछते हुए क्यों नहीं आ रहा है बच्चा। तो ये सब माध्यम से करते हुए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि वो पूछने गए, स्कूल में नहीं आया, इसके बारे में उसके जो सवर्ण जाति के लोग हैं उन्होंने उनको घर में जाके मारा। मतलब हमको पढ़ने का ये नहीं किया। संविधान में लिखा है पढ़ने के लिए,
जो जो पढ़ रहा है बच्चों को पढ़ने दो ना। ये जातिभेद करके ये सब कुछ कर रहे तो आपको क्या मिलने वाला है। हम तो यही चाहते हैं रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास जी आठवले साहब, इनको जब हमारे फादर सुसई साहब मिले तो 12 तारीख को उन्होंने जाके गांव में जाके बताया ऐसा ऐसा है, तो बाद में हम बम्बई में इसके बारे में आंदोलन छेड़ेंगे। जो यहाँ के उनके प्रमुख कोई रहेंगे तो हम उनको कहना चाहता हूँ कि ये सब गांव में बंद करो। ये बंद करने का इसका मतलब है संविधान पे चलने वाला देश है, ये धारावी है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हर समाज के लोग हैं। साउथ में जितना समाज है ये समाज पे धारावी में रहता है। अभी आपको मालूम है धारावी में कैसे है, और साउथ धारावी की एक बड़ी ताकत है, नाक है, ये ज़बरदस्त ताकत है। और ये गणेश मंदिर के प्रमुख हमारे मारी भाई है, 115-20 साल से यहाँ 111 साल से गणपति बैठता है, 120 साल से यहाँ समाज रहते हैं। तो हमारा कहना है कि ये जो चल रहा है वो बंद होना चाहिए। हम चाहते हैं शांति, चाहते हैं शांति नहीं चाहते आप जो कर रहे थे। तो इसके बारे में अब अभी रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास जी आठवले आने के बाद में उनसे बात करेंगे, उसका टाइम लेके राज्यपाल, यहाँ के जो राज्यपाल है, राज्यपाल से मिलके वो डिस्ट्रिक्ट वो जो तो उनको राज्यपाल से टच होके उसे बात करें। ना तो हम बम्बई में एक बड़े पैमाने पे RBI तरफ से और अधिद्रविड़ महाजन संघ से ये बड़े पैमाने में हम बड़े से बड़ा मोर्चा लेंगे, अजय लेके जाएंगे, ये मंत्रालय पे जाएंगे, नहीं तो राज्यपाल पे लेके जाएंगे। तो आठवले साहब आने के बाद में सोचेंगे। इसके बाद में हमारा कहना है कि हमको जो हमारे बच्चों को जो हो गए अभी उनका दादाजी गुजर गया है, ये तो बड़ी बात, एक दुख की बात है ना। ये सब करना नहीं चाहिए, उन्होंने आज किया है। हमारे जो गरीब को उन्होंने मागास वर्गीय लोग को किया है। तो हमारी समाज ऐसी है, हमारे एक काटेगा तो हम 2 काटने वाले लोग हैं, हम छोड़ते नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने हमको सिखाया है कि संविधान के माध्यम से चलना चाहिए, तो इसके लिए बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहिए। इसलिए हम शांति की तरफ से राज्यपाल को मिलके, ये समाज के प्रमुख नेता को मिलके लेके जाके वो हम आठवले साहब को आने के बाद में, दिल्ली में आने के बाद में उनको मिलेंगे राज्यपाल को। जय भीम। भाई मेरा आपसे आखिरी सवाल, जैसे सारी बातें तो गए, इसके बाद से आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? नहीं, अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप पहले पूछे 75 साल आज़ादी के, हम तो 2000 साल से यही झेलते आ रहे। हमारे आगे आने वाले पीढ़ी तो कम से कम सुकून से जरा ये सब जातिवादी से हट के जरा इज्जत की ज़िंदगी जिए। इसके लिए जो करना पड़े वो हम अभी शुरू कर दिया, अभी रुकेंगे नहीं। देखिए ये गणेश मंदिर का ये परिसर है, यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ के वक्ता है, यहाँ मारी भाई है जो यहाँ की देख रेख करते हैं। ये अध्यक्ष है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष है। सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ पे अपने क्षेत्र के दिग्गज है। यहाँ पे इन्होंने जो बातें बताई है, जो बाबा साहब का जो संविधान है उस पर आज देश नहीं चल रहा है। और ऐसे जो घटनाएं जो घट रही है, इन्होंने कहा है कि राज्यपाल से मिलेंगे, आगे निवेदन देंगे। नहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो रामदास आठवले जी जो सामाजिक न्याय मंत्री उनको भी इस विषय पे उतारेंगे। और ये कैसे इनकी जो बातें सरकार तक पहुँचती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जब तक ले धन्यवाद। पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम।